and welcome to ABP Live. I'm coming directly to you from Srinagar, Kashmir, and I'm right now standing at a place called Jhelum Band. This is where, on the river side of Jhelum, people come here for morning walks, for evening walks, and to, generally spend their day. But today, as you can see, it is having a sort of a deserted look. It's almost like a curfew-like situation because today Srinagar goes to the polls. This is the second phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections. The first phase had happened on the 18th of September. Today, as you know, that amidst very heavy security, and the security has been tightened across the Kashmir Valley and also Jammu because of also the terror incidents that are taking place in Jammu. People are coming out of their homes to vote. However, we'll see over the day how the turnout comes out to be, because in the first phase we've seen the turnout almost touched 63%. That's what the Election Commission tells us. Now, today, three central Kashmir districts of Srinagar, Ganderbal, and Budgam will decide the fate of around 239 candidates across 26 assembly segments, including 79 in Pir Panjal in Jammu. The 26 constituencies in these phases are spread across Srinagar, Budgam, and if I can ask my camera person to pan around to show you the condition and the state of the city. We'll let you know over the day how the situation turns out to be and how the polling goes. So as I was saying, the 26 constituencies in this phase are spread across Srinagar, Budgam, Ganderbal districts of Kashmir Valley, and also Rajouri, Riyasi, Poonch districts in Pir Panjal in the Jammu division. This, of course, needless to say, includes some heavyweight candidates like the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, and of course the JK Pradesh Congress Committee Chief Tariq Hamid Kara, BJP leader Ravinder Raina, Awami Ittehad Party's Engineer Rashid, and we saw last time during the Lok Sabha elections, Engineer Rashid really defeated Omar Abdullah by a huge margin from the Baramulla seat. The second phase of the assembly elections in Jammu and Kashmir, let me tell you, for the benefit of our viewers, over 2.5 million voters are expected to exercise their franchise across 6 districts. As I said, 3 in Kashmir Valley and 3 in the Jammu division. Let me also remind our viewers at this point of time that this local assembly elections are taking place after almost a decade. The last elections, the local assembly elections, took place in 2014. And also this is the first time the voting is taking place in the local assembly elections, of course, after the abrogation of Article 370 and 35A. So this particular, the outcome of this election is also going to give, a signaling, a messaging to the larger, to India and also to the larger world outside, whether Kashmiris have been happy or they are contented or they are upset and discontent with the abrogation. Because the demand, as we know, on the ground, as we do our ground reporting, the overwhelming unanimous demand that we see across political lines and also from the common man is that they need their semi-autonomous status that they used to enjoy when 370 was there. However, there is also a realization that the 370 may not come back, but they need some kind of a solution, an alternative to that. Having said that, let me also say that for decades, boycotting elections in Kashmir was a sign of protest by the Kashmiris, even as militancy was raging on. But that seems to have changed, and when ABP Live was earlier there in Kashmir covering the Lok Sabha elections, we saw how people were turning out in huge numbers just to say that we are expressing our anger. Yes, stone pelting has stopped. Yes, militancy probably has come down. However, we see terrorism raging in Jammu. But then they say that we need job generation, we need control in the huge rise in prices, and of course they want corruption to be tamed, which they believe is happening in huge numbers. During the first phase of the voting, as I said, the turnout was 61.38% to be precise. However, it needs to be seen how the second phase goes, and of course the third phase will be happening on October 1st. And as I said that, over the day we will speak with more voters, we will speak with more candidates, and we'll see how the day turns out to be.
दूसरे फेज की पोलिंग जो है सुबह से शुरू हुई है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। सर, यही हमारी उम्मीद है। सर, डेलीगेशन एक सर डिप्लोमेट What Congress does in Kashmir is not important. ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? अब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही ना। अब हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ के पोलिंग को देखने के बाद श्रीनगर के लोग भी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपने एमएलए पे जो है अपने एमएलए से काम मांगने का हक है। और वो हक जो है वोट से शुरू होता है। उन्हें अपने एमएलए को चुनने में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फिर अपने एमएलए से जो है काम मांगने चाहिए। NC will be emerging as a winner or not? I'm absolutely hopeful, and I'm absolutely confident that National Conference in larger constituency will win the seat, inshallah, with a very good margin. And sir, what will be your main focus if you win the elections? You know the demands of the Kashmiris. We hear something else. I have done extensive campaigning during my campaigning period, so I have shared my ideas. I have taken the views of the people, so I am already in of the fact what are the basic issues and needs of the people of larger constituency. So, and I've been working post delimitation commission. I've been continuously working in larger constituency from last 3 years. Right. Unlike other candidates who have started their work from last 1 month. So I have already been in the field post delimitation that took place in 2020. So I am well versed with the issues and local miseries of the people. So I'm hopeful that the people will give me the mandate and will be able to serve them, inshallah. Sir, and just one last question. With so many independent candidates this time, giving up, putting up challenges and their own sort of agenda, do you feel that is a kind of an emerging landscape? Do you feel threatened about that? Well, I don't think an independent candidate is a threat. Independent candidate is not a threat largely because of the reason that, I mean, they don't even know where the constituency is. Okay. So maybe some independents have been put in the place just to break the
traditional vote bank of the political parties like NC. Okay. But I think the way people are coming out to vote, the way I have had interactions with the people since morning, I don't think whosoever he may be, all independent candidates will lose their deposits in larger And constituency. at the end of the day, are you expecting a good turnout? I am expecting a turnout of around 40 to 45%. Yeah. हमारे साथ है अली मोहम्मद साहब, वो यहाँ पे अपना खुद का बिज़नेस चलाते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो इस इलेक्शन से क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने बुज़ुर्ग होने के नाते उन्होंने पूरे कश्मीर का देखा है, इनका इसका इतिहास कैसे चला है। तो हम इनसे पूछते हैं ये आखिर में ये इलेक्शन जो 10 साल बाद हो रही है, इसमें से उनकी क्या उम्मीद है। आप क्या चाहते हैं इस इलेक्शन से, आपको क्या सहूलियत मिलेगी, क्या ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या होना चाहिए कश्मीर का इसके बाद? इंशाल्लाह ये 10 साल हमने बहुत गरीबी में गुजारे हैं, हर एक गरीबी में गुजारे, और हम चाहते हैं जो भी बनेगा, जो भी इधर सीएम बनेगा, उसको चाहे वो सोच समझ के गरीबों की सुविधा के लिए कुछ करें और कश्मीर के लिए भी कुछ अच्छा करे और अच्छा सोचे। वो जो पिछले दिनों की बात है, कई सालों से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, वो उस वक्त खेल कर रहे थे, मगर अब उनको सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है हमें कश्मीरियों के लिए और कश्मीरी कैसे जी सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी बार बार यहाँ मरते हैं, हमारे बच्चे भी मर गए, शहीद हो गए, और यहाँ हालात भी ठीक नहीं है, गरीबी भी बढ़ गई, बेरोज़गारी भी बढ़ गई। हम चाहते हैं इंशाल्लाह जो भी आएगा, जिस पार्टी से भी जो भी आएगा, वो हमारे लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ करे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैडम आप अपना नाम बताओ और आपने अभी अपना वोटिंग किया, थोड़ा अकबर हमारे दर्शकों को दिखा दे अपना फिंगर जो आपने वोटिंग किया है, आपका वोटिंग मार्क थोड़ा कैमरा के सामने। अच्छा अब ये बताएं, हमें सुना जाता था, हम सुनते थे कि कश्मीर के लोग जो है स्पेशली श्रीनगर के, वो जो है वोट करने नहीं आते हैं, उनका इंडिया के ऊपर, सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप हमें बताएं, आप जैसे सुबह सुबह आज यहाँ वोटिंग देने आई हैं, आपका क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? मुझे इलेक्शन से ये उम्मीद है कि बच्चों को पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए और सरकार की और सारी पब्लिक ठीक होनी चाहिए, गलत काम न करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो फ़ोन आए हैं वो गलत इस्तेमाल होते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो अच्छे काम और अच्छे सारे भाई बहनों से मैं ये कहती हूँ अपील कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यहाँ कि पावर भी रहना चाहिए, पानी भी रहना चाहिए, हर फैसिलिटी होनी चाहिए कि कोई गलत काम ना करे। अच्छा और हमें ये भी देखने को मिलता है मैडम कि यहाँ पे आतंकवाद का जो है, फिर जो हमें पथराव है, ये सब चीज़ें हम देखते थे। अभी हम सुनते हैं कि 370 हटने के बाद ये सब ठीक हो गया है। आप एक हाउसवाइफ है, आपके भी बच्चे हैं, परिवार है, 2 बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी स्कूल, उनका फ्यूचर होना चाहिए ऐसे कि आगे बढ़कर वो कुछ बने। अच्छा, और मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन जो भी आपने जिसको भी वोट दिया, क्या आपको उनसे उम्मीद है कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतरेंगे? हाँ, हो जाएगा, या ये खुदा का। जी शुक्रिया। और आपका हाँ जी आपका नाम बताएं, और आप क्या श्रीनगर से ही है? हाँ, हम यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में हमने विजिट किया है, तो यंग वोटर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इनरोल किया है, दे आर इन द पोलिंग स्टेशन। और एक जो हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट श्रीनगर में जो पोलिंग हो वो एक फेस्टिवल की तरह हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी लोग आए हैं और अपना वोट कर रहे हैं। हमारी सारी फैसिलिटीज़ वोटर्स के लिए इन प्लेस हैं। जो पोलिंग स्टेशन है 932 पोलिंग स्टेशन, उनमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के जो रैंप्स है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वी हैव सेपरेट टॉयलेट्स हैं, और एक अच्छा माहौल रखा है हमने पोलिंग स्टेशन पे, ताकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहे जब वंस दे कास्ट देयर वोट।
आपके माध्यम से पूरी श्रीनगर के अवाम को मैं बताना चाहता हूँ 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, अपने घरों से निकले और वोट करें। Sir, Nainima from ABP, if you can tell us the fact that the foreign diplomats, the senior diplomat delegation is here, how is this going to help? Do you think this will give us a positive signal out to the ऑफ rest of कोर्स India? जिस तरीके से द वे पीपल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वोटर कि वोट जो वो करने आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में, वो आ रहे हैं अच्छे से, एक अच्छा सिक्योरिटी इंतजाम भी रखे हुए हैं, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, पीपल आर कमिंग और वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन डेलीगेट्स भी वो भी देख रहे हैं कि हाउ दिस डेमोक्रेसी, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है और हाउ इट इज़, ये किस तरीके से फ्लोरिश होती हैं थ्रू इलेक्शंस। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो नारा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हम उसी पे चलते हैं। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, a good experience for voter and a very good facilities at polling stations. This is the mandate of Election Commission of India and we are the representatives of the Election Commission of India and we ensure कि that ये चीज़ें हम कर पाए। फिर वोटर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहो, या कोई फॉरेन डेलीगेट आए वो भी देख सकता है कि दैट हाउ द वोटिंग हमारी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें होती है। As you can see here, the foreign dignitaries from almost 16 countries, senior diplomats, a high-level delegation is currently visiting one of the very key booths that has been set up only for women in Srinagar, in Kashmir. And the delegates, the senior diplomats are all deputy chief of missions, some are political ministers, councillors, and they are from countries like the USA, Mexico, Rwanda, Philippines, and several others. They basically want to see how it is, how the election has been taking place, if it's a free and fair election, and what are they feeling about the situation out here. सलाम, अपना नाम बताइए और आप लोग। अच्छा, और आपका नाम? अच्छा, तो आप लोगों ने अभी वोट दिया, आपको क्या उम्मीद है अभी जो इलेक्शंस हो रही है? ऊपर वाला जानते हैं, कर्म उसका है, तो मैंने अपने पेटी में डालने जो मर्जी से किस तरह डाला, बाकी तो आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी का है? हाँ, नौकरी का है? हाँ जी, बहुत गरीबी है, बहुत उठाती है, सारी मुसीबत करनी बर्दाश्त पड़ती है। ये वोट दिया हक से जो मुतालबा है वो तो पूछना चाहिए बस, तो उसके वास्ते दिया। आप जब वोट देने आए 2014 के बाद पहली बार हो रहा है कि आपको कोई डर लगा, कि आपको लगा कि नई सिक्योरिटी है, मैं आराम से वोट देने आ सकता हूँ? कर्म से फिर निकला, वादा करके निकला, फिर तो कर्म अपना लकीर से डाले। तो आप अपनी बीवी को भी ले आए और अपने बच्चों को भी ले आए हैं वोट देने? हाँ। अच्छा, तो ये हमें बताएं, आपके लिए जैसे आप कह रहे हो कि गरीबी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें जैसे सुनने को आता है दिल्ली में या मतलब बाहर कि आतंकवाद का सबसे बड़ा डर है। आपके लिए, आप यहाँ रहने वाले, आप चिनार बाग से रहने वाले हैं, आपके लिए सबसे बड़ा क्या मुद्दा है? वही बात है, थोड़ा जो गरीबी है, हाथ में मुसीबत का कितना घर से भी गृहस्थी में होती है, वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो तो आराम से मिलना भी, कोई मिनिस्टर हो क्या भी वो बना सकते गृहस्थी में, ऊपर वाला का करम। फिर गरीब लोगों पर भी हमदर्दी से कोई नज़र के मेले का नजर रहना। हम तो चिनारबाग का रहने में जो उठाती, कितना कर्म से उठा था, वो डालने वोट से हक से दिया पूरा सपना। तो आपने 2014 में वोट दिया था? हाँ जी, बोला। अच्छा, आप हमेशा वोट देते हैं? पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अगर सामने है जी बिल्कुल, थोड़ा इफ़ आई कैन आस्क माय कैमरा पर्सन टू शो द वोटिंग कार्ड्स। कितना मुसीबत से उठा, पानी सैलाब से, जैसे डैमेज तो सारे डैमेज से बीक तरीका, रात में बीक लगा भी। तो आपको उम्मीद है कि ये इलेक्शन जो है आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए कुछ उम्मीद लाएगी? तो वो तो कर्म जानते हैं आप, तो जो हक है कस्टमरों को वो तो निकल से, और रिपोर्टिंग पूरा दिया। रिपोर्टिंग का डिफिकल्टी नहीं है, कोई गजारी नहीं होना चाहिए, फिर तो मुकद्दर का अफसर लोग का बनने का आला। जी सलाम, आप बताएं, आपको क्या उम्मीद है यहाँ से? आपने वोट दिया, आप जैसे इन्होंने कहा आप हर साल देती हैं, आपको क्या चाहिए इस वाले इलेक्शन से? जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो भी बने, आप क्या चाहते हैं वो करे? वो थोड़ा नज़र गुजर डालेगा, थोड़ा सा तो कहीं से मदद करेगा, कोई कहीं मुसीबत में फंस गई, थोड़ा मदद करेगा कि बुलाने से आएगा, बातचीत करेगा, यही उम्मीद है। ऊपर वाला जो करेगा नसीब में।
आप भी काम करती हैं? नहीं, आप घर में? घर में। तो आपके लिए तो और भी वो होगा कि पानी बिजली ये सब चीज़ें रहे। हाँ, रहे सब, बिजली पानी नल का ये इतना फीस लेता है ना, क्या करूँगा, घर नहीं चलता है। ये किला हाथ है, तो ये किला काम करती है बस। अच्छा। हम घर में बैठ के, वो दूसरा घर में बैठ के, वो सबको पता है। लेकिन आप फिर भी वोट देने आए तो आपको उम्मीद पूरा है? पूरा है आपको भी। अच्छा। I'm currently standing right now a place called Motherland High School. As you can see, voting going on in full speed out here. This is around 11:30, 12, and we can see people coming in hordes. They were queuing up, women voters as well as male voters. Amidst high security, we can see people are turning out. This is downtown Srinagar I'm talking about. And Ohata is a place which has witnessed very high degree of stone pelting as well as militancy. Now, let me tell you that, you know, the security forces deployed here in downtown Srinagar is much more than what we saw in other places of Srinagar, where the security is high relatively, but not as high as it is here, because people here tell me off the record that till now, till date, at least 4,000 to 5,000 boys, men from here, they are still behind the bars, they are still in the prison, and they are facing severe charges and charges of militancy, and they have not been released because of the threat factor. But then they are saying that, you know, if India really wants Kashmiris to exercise their franchise and show that this is democracy, then they should have released those boys. But that's the voice of the common man out here. But what we are also seeing, that the voters are telling me, some on camera, some off camera, is the fact that they are hopeful that finally, due to the Supreme Court's intervention, the elections are happening in Jammu and Kashmir, and they believe that whoever will be the chief minister, it can be from any party. They are being very honest out here. It can be National Conference, it can be from PDP, it can be from BJP even. But then they are saying whoever will be the chief minister will know the local issues out here, and they will not see the issues that the Kashmiris are facing only through the prism of counter-terrorism and militancy. They'll also see and address the local issues. And the biggest issue that is coming out right now is poverty, is job generation, is the lack of jobs out here. So people want something like the price rise needs to be there, that needs to be controlled. What needs to be controlled also is the fact that, you know, they are saying that winter season is coming, and that's when they pay hefty price for electricity charges. They want good education for their kids. They also want stability and they want security. आपका नाम बताएं और आप हमें ये भी बताएं। शेख। अच्छा, और ये बताएं हम हैं। आप कहाँ? नवाटा तुजगिर माला। हाँ बिल्कुल। ये बताएं, ये जो 10 साल बाद वोटिंग हो रही है, आप यहाँ पे जैसे वोट देने आए हैं, क्या आपको लग रहा है, कोई उम्मीद है कि सरकार जो भी बनने वाली है वो आप लोगों के जो भी उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरेगी? इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि जब 10 साल से यहाँ वोट नहीं हुए, तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो गया ये वोट, तो इंशाल्लाह हमको पता है कि हम अपना नुमाइंद चलाएंगे, तो हमारे अपने ये जो काम है वो अपना खुद कराएंगे। और आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें जैसे दिल्ली में ये सुनने को आता है कि 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद कम हो गया, पथराव कम हो गया, लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत है। मैंने जैसे बहुत लोगों से बात करी है, लोग ये कहते हैं कि ठीक है पथराव बंद हो गया, लेकिन कामकाज नहीं है, गरीबी बढ़ चुकी है। तो आपका क्या राय है? बहुत, ये तो हिंदुस्तान को भी पता है, यहाँ भी पता है कि महंगाई कितने हैं। जिस दिन आज से 10 साल पहले एक गैस का मिट्टी आता था 300 350, आज वही है 1100 में। और आपको पता है कि बिजली का बिल, यहाँ सर्दी है, यहाँ 8 महीना रहता है सर्दी, 4 महीना रहता है गर्मी, और बिजली बिल आता है अभी 2080 रुपया, जब हम पहले भरते थे 300 350। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपना नुमाइंद बने, अपना वो जो उनको पता है, जो यहाँ का है उनको पता है कि यहाँ क्या फैसिलिटी है। 5 किलो चावल देते हैं, एक चंदी का 5 किलो चावल, जो अब 5 आदमी वहाँ होंगे, 5 किलो चावल क्या खाएंगे वो? यही तो जुल्म है ना हमारे साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना नुमाइंद होना चाहिए जो लड़ेगा हमारे लिए। आपको लगता है? हाँ बोलिए। इसलिए पहले भी हमने जो चुनाव में हमने शरीक किया, इसलिए पार्लियामेंट का जो था ना, उसमें भी हमने भरपूर शरीक किया, जिसमें हमारे 2 नुमाइंदे आ गए वहाँ।
रोला आ गया और दूसरा आ गए, तो इसीलिए हम आज भी चाहते हैं कि अच्छा सा हमारा नुमाइंदा हो जो बात करे, जो हमारे जो काम काज हो। यहाँ बेकारी है, महंगाई है बहुत। तो आप ये बताएं, आपने तो बहुत कुछ देखा है कश्मीर के इतिहास में, जो भी अभी तक हुआ है, आपको लगता है कि इसके बाद जो भी आएंगे वो कोई बदलाव लाएंगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बदलाव आएंगे, उम्मीद ही इस्लाम का हक है। जी शुक्रिया। जी जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो ABP लाइव, वी आर currently standing in this Kant Mohalla constituency, which is also called the floating booth. It is in Zaribal constituency, and this is one of the unique polling booths because this is called the floating polling booth, and we are going to very soon witness the diplomats, senior delegation of diplomats from countries like US, Mexico, Spain, Philippines, Rwanda are going to come here and witness the election that has been going on. They are also witnessing the assembly elections. They had been to a special booth which was made exclusively for women, a pink booth, although male voters were also there, and they had also gone to Budgam. But on their closing leg of the trip, they are going to come here to witness how villages that are located on the banks of and in the middle of Dal Lake, how they cast their votes. And so these are called floating booths because these places are not accessible by road. So we are going to see that very soon, and we are going to also talk to a few voters here. I have with me two voters who belong from this place called Kant Mohalla, and this is one of the floating booths. This is located in the middle of Dal Lake, and one cannot access these places by car. One has to come here with the help of a boat or a shikara. We are going to ask from him and to understand how they cast their vote. पहले तो हमें ये बताएं कि इसको फ्लोटिंग बूथ बोला जा रहा है, अभी यहाँ पे डिप्लोमेट्स आने वाले हैं, आपने ऑलरेडी वोट दे दिया है? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या उम्मीद है जो भी आपका नया चीफ मिनिस्टर बनेगा 8 तारीख के बाद, उनसे क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? हमें ये उम्मीद है जब यहाँ की नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, पहला हमारा काम करेगा। हमारे पास यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं पढ़ा लिखा के, यही उम्मीद है हमें, इसीलिए हमने वोट डाला। आप हर साल वोट डालते हैं? अभी तो 10 साल बाद हो रहा है, पिछले बार 2014 में आपने वोट डाली थी? जी बेटा, NC को डाला उस टाइम। जी बेटा, इस टाइम भी NC को। अच्छा, तो अभी तो NC कांग्रेस के साथ अलायंस की, आपको लग रहा है वो आप लोगों के लिए कुछ काम कर पाएंगे? पूरा करेगा बेटा, वो काम करेगा। जी जी, उमर अब्दुल्ला साहब पूरा काम करेगा। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So I have with me the South Korean diplomat, and he is here visiting Jammu and Kashmir, and he is trying to understand the election process that is taking place out here. So if you can tell us, how has been your experience over the day? This is called one of the floating booths, floating polling booths. So how are you finding this experience? No, this is the first time ever that I've set foot here in this region, and of course, first time that I come to a floating voting station. It's just amazing how you were able to put everything together in place, and people are lining up. Were you able to interact with any of the voters? Did they tell you what is it that they're expecting? I was actually inside interacting with people, and they're very enthusiastic, very eager to cast their votes, which is very important in a democracy. You have to make your voice heard through the votes. So voting is taking place here after 10 years. Do you think this needs to be, in the sense, in democracy, the abrogation of Article 370? How do you think that is panning out, and how is South Korea viewing all this? I just want to say that, in India and Korea, we're both model democracies of not only Asia, but the world at large, So I think Korea and India, we share this core value of having a free, open Indo-Pacific. And one of the core values that we share is this democracy, ideal of democracy. So it's very important to have democracy functioning, even at the grassroots level, even in places where where it's enclosed and it's a hamlet, and you might think that people will be very hard to cast a vote. But I come here, I see that that's not the case. You've managed to put together a floating voting booth, which is really very impressive. So. Sure.
congratulations to you Sure. for this magnificent work. Thank you so much. Thank you for talking to us. So as you can see, that was the Deputy Chief of Mission of the South Korean Embassy talking to ABP Live about his experience. He also came here. This is where we are standing right now at the floating polling booth, and they believe that this is a unique experience. However, they know that in a democracy, voting needs to continue, and South Korea is observing the developments in Kashmir that is taking place. So as you can see behind me, the delegation of the senior diplomats who had been going around the Srinagar city, visiting several polling booths, have now come to this particular polling booth, which is a floating polling booth in the Khan Mohalla region, which is located inside Dal Lake. They had come here through Shikara because this place is not, as I said, is accessible by road. So they had to take a Shikara. They had taken one of the VIP Shikaras, and the delegation is here to see how the voting takes place in a place like this, where the voters are around 1,069, and so far we are entering, this is evening time, and so far in this particular polling booth, as you have seen, as we were speaking with one of the officials here, the turnout had been almost 60%. I'm currently standing right now at the Gandarbal district of Kashmir Valley. This is where we are going to cover one of the campaign rallies of Umar Abdullah, the chief of the National Conference. And we've seen for this year's Jammu and Kashmir Assembly elections, the National Conference has tied up with Congress, promising to solve some of the local issues concerning rise in prices, basically inflation, employment and all that. However, we have also heard Omar Abdullah, who's the former Chief Minister of J&K, talk about the fact that he will also be working towards restoring Article 370 that was revoked in 2019. While it remains to be seen what will be the final outcome, the counting of the elections is on the 8th of October, but then right now the intensification of the campaigning has really gone up and it has intensified across the valley. It remains to be seen who really comes up as the front runner and who becomes the next Chief Minister of Jammu and Kashmir. ये बताइए इस बार की इलेक्शन का मुद्दा आप लोगों का क्या है और आप सेंटर से क्या चाहते हैं? जो यहाँ पर हमारे जो इस्तेसाल हो गया, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। हमारी महंगाई जो है यहाँ पर, बिजली की जो हमारी 1600 रुपया महीने में देते हैं, या चावल का ये इशू है, जो हमारे ये ज़ूलॉजी माइनिंग के रिलेटेड बहुत सारे इशू है। इसी पर ज़्यादातर हम इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालना चाहते हैं। और जो यहाँ पर आप देख रहे भीड़ कितनी है, जो उमर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे आने वाले इंशाल्लाह सीएम कैंडिडेट होंगे, वो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट कर रहे हैं इलेक्शन। और हमारी जो महंगाई है यहाँ पर, जो बेरोज़गारी है, उस पर हम। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं डीडीसी मेंबर यहाँ पर मनीगाम से हूँ। लार ए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, मैं डीडीसी मेंबर हूँ। और यहाँ पर जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही उम्मीद है, जो हमारी 19 गारंटियाँ लाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के ज़रिए, जिसमें हम बेरोज़गारी का उन्होंने वादा किया है, 1 लाख रोज़गार देंगे हम। दूसरा राशन का मामला है, और जो हमारी ये बिजली की महंगाई है इस वक्त, उस पर वो ये। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस करी है, इसको आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। यहाँ पर हम बैसाखी वाली सरकार नहीं चाहते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के, जो ये बैसाखी वाली सरकार नहीं है हमें चाहिए। हम एक ही मेजॉरिटी देंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पूरी बहुमत के साथ उनको लाएंगे, और हमारे आने वाले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। और आप ये बताइए, ये जो 370 धारा जो हटाई गई थी, उन पे आप लोगों का क्या डिमांड है उसके ऊपर? देखो, हम इस मामले में टिप्पणी नहीं करने चाहते हैं। हमारे सीनियर जो बैठे हुए हैं, हमारे कायद जो उमर अब्दुल्ला साहब है, वो बात करेंगे इस पर। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो हमारी नाले है बाहर भेजे गए हैं। इस वक्त हमारी रेत की गाड़ी 20,000 में मिलती है। हम जो हमारे स्ट्रक्चर कोई ये बनाना चाहते हैं, मगर हमारी वो महंगाई कम, जो हमारी रेत की हड्डी थी, जो हमारे सोर्स थे, नाले थे, वो हमें उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है इस वक्त। अच्छा, तो आपको लगता है जो मतलब जो कश्मीरी आवाम अलग से हैं, उनको भी यही सब प्रॉब्लम्स हैं, लोकल इशूज़? यही लोकल इशू है। हमारी जो महंगाई इस वक्त चल रही है, जो 19 गारंटी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई है अपनी मंशूर में, उसमें राशन का भी मामला है, जो हमारी बिजली फीस की रेट इंक्रीज़ हो गई। एक बल्ब जलाती है जो हमारी फार फिलिंग है, एक बल्ब पर 1600 रुपया आती है महीने में।
वो 1 लाख तक चढ़ी है, उस पर हम वोट देने तो आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब आपके जो प्रॉब्लम है इसको सब सॉल्व कर पाएगी? ये गारंटी दी है ना उमर साहब ने, जो अपनी मंशूर में हमें वादा, हमें भरोसा है उमर साहब पर। ये आने वाले चीफ मिनिस्टर बैठेंगे और पहले ये वादे पूरी करेंगे। जी शुक्रिया। बीजेपी दुश्मन हमारा, बीजेपी दुश्मन हमारा, बीजेपी बोलो, मिल के बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मिल के बोलो। एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं? हमारा एजेंडा एक ही है कि जो हमसे 2019 5 अगस्त को छीना गया वो हमें वापस चाहिए। जो हमारे साथ वादे हिंदुस्तान ने किए हैं वो हमें उन वादों पर हिंदुस्तान को उतरना चाहिए। हमको लगता है कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीजेपी की वसादत से हमारे पीठ पे छुरा भोंका है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ मशवरा करने के बगैर, हमारे साथ बातचीत करने के बगैर उन्होंने हमारे लोगों का फैसला लिया है पार्लियामेंट में। हमारी आइडेंटिटी छीनी है, हमारा शनाख्त छीना है। हमारी यही लड़ाई है पॉलिटिकली कि ये हमारा हक है, ये हम वापस लेकर रहे हैं। आपको लगता है इस इलेक्शन के थ्रू आपको ये सब मिल पाएगा? जरूर। पहले ये मैसेज जो है लोगों का इस इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने देखा, इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि जो भी यहाँ बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज है और जो भी यहाँ बीजेपी की हिमायत करने वाली पार्टियां हैं वो यहाँ पर नहीं उभरेंगी, कभी नहीं उभरेंगी। मैडम आपका नाम क्या है और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि हमारे जब से हम पैदा हुए तब से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चल रही है और मेरा नाम इकरा बशीर है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले, शालाबुक के ही। आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस आप जो जो चाहते हैं वो सब कर पाएंगे और आप क्या चाहती हैं इस बार की इलेक्शन से? इंशाल्लाह वो करते भी है और करते आएंगे भी। अच्छा, हमारी जरूरत है वो पूरा हमेशा करते हैं। आप लोगों की क्या जरूरतें हैं अभी के लिए? अभी के लिए ये है, हमारी जो पीडीपी है हमारी वो भी अच्छे हैं मगर वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं जो हमें पूरा करनी चाहिए अभी। इसलिए हमारी बेहतर नेशनल ही है जो हमारी बातें समझते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं। अच्छा, आप तो औरत हैं, आप ये बताइए कश्मीर में औरतों की क्या इश्यूज है जो आपको लगती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर पाएगा? इंशाल्लाह हमारी भी इश्यूज हैं बहुत सारे, जैसे 12th के बाद लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाता है, लड़कियों के पढ़ाने के लिए भी इंतजाम करता है और बहुत कुछ करता है नेशनल। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट करते हैं और आप इस बार के इलेक्शन से क्या चाहते हैं? हाँ, हम इस बार के इलेक्शन से ये चाहते हैं, आपने पहले एक सवाल किया, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस बुनियादी कश्मीर की वो जमात है जो हिंदुस्तान के हुक्मरानों के साथ, कांग्रेस के साथ, यानी जो आज राहुल जी है, अपोजिशन में राहुल जी है ना, उन्होंने राहुल जी जबकि कांग्रेस के साथ हमारे माहदा हुआ था कश्मीर का, वो जो उसमें धारा 370 था, 5 आर्टिकल था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ था। मगर भाजपा सरकार ने जबरदस्ती, जो लोग बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम जमहूरियत चलाएंगे, हम इंसानियत, भाजपा का नारा था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आप बताओ ग्राउंड पे कहाँ है इन 3 चीज़ों में? कश्मीर की बात नहीं, पूरी इंडिया की बात मैं बताऊँ, जमहूरियत कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई यूपी में देखो लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। ये तो आपकी गवर्नमेंट है ना इस वक्त, अब तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, अब तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, मानते हैं हम भी आप प्राइम मिनिस्टर। आज तो आप लंगड़ी की सरकार है, पहले जो तो आप पूरे सरकार में थे। इस वक्त जो हमें चाहते हैं धारा 370, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ा जुल्म यहाँ मजदूरों पर, गरीब आवाम पर जो है वो है महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन जो बोला जाता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी कम हुई, स्टोन पेल्टिंग कम हुआ पिछले 5 साल में, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ, उस पर हम बताना चाहते हैं मोदी जी को। मोदी जी बोलते हैं जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस था या पीडीपी था, यहाँ आतंकवाद ज्यादा था, हमने आतंकवाद को खत्म। भाई आप मीडिया के जरिए मैं उस तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, किसी को गला दबाएंगे, बात करने का इजाजत एनआई पीछे लगाएंगे तो लोग कहाँ सड़कों पे निकलेंगे, लोग कहाँ अपने हक की बात करेंगे? बात ये है, हो गई पत्थरबाजी काम। मिलिटेंसी की बात मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ। आप मोदी जी, अमित शाह जी, आप ये बताइए
रजौरी में हमारे वीर जवान जो बाथरूम पे, महजूम पे, किसी जगह भी अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, क्या उन वो बेवा नहीं हुए इनके पत्नी? अच्छा, अब मुझे ये आखिरी सवाल ये बताएं कि आप इनको जो वोट देंगे, आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब कर पाएंगे? कि अभी भी हमारे जो मसला है, हमने 5 बार सुप्रीम कोर्ट में केस लिया है, 4 बार हमारे हक में फैसला हुआ, इन लोगों ने जबरदस्ती 5वीं बार तोड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम अपनी बात इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि वेव क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये तो एक छोटा गांव है, ये पूरा ब्लॉक भी नहीं है, ये छोटा एक गांव है जिस वक्त आप है। ये एक गांव का जज्बो जोश है, यहाँ के बच्चों का, यहाँ का जवानों का, यहाँ के औरतों का, यहाँ के बुजुर्गों का। मोदी जी को ये बात बताओ, ये कश्मीर है, ये कोई यूपी वाला स्टेट नहीं है, ये राजस्थान नहीं है। आपका नाम बता और आप कहाँ से हैं? मैं गांधरबल शेरपत्री ब्लॉक से, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। हम बार है यानी कि हजाम। मैं कहता हूँ हम मजदूर थे, हमने बाहर के बारों को काम करने यहाँ नहीं दिया। हमारे अपने रोजगार पे कमी हुई क्योंकि हम कश्मीरी है। बिहारियों ने अच्छे तरीके से काम किया है, अच्छे जंग से, चलो उनके पास नौजवान आज के जाते हैं। मगर एक बात बताना चाहता हूँ मैं मोदी जी को, आपने देखो हमारी बिजली है, दिल्ली में मुफ्त है, पंजाब में मुफ्त है, हमारे ये बिजली हम पे आपने 400 से 2000 तक पहुँचाया। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So over the day I showed you how there has been the polling that has been going on in Srinagar, and as I said that this is the second phase of the polling that has been going on. The first phase had happened on 18th of September, and today the 25th of September was the second phase that had gone on. Now as we know, I mean, the Election Commission will be coming up with the final turnout rate in a day or two, but we know that till 2 p.m. the turnout had been near 40%. Srinagar wore a look of almost like a curfew. The traffic was thin, the shops were all closed, but we got a glimpse of the voting that had happened in some of the crucial areas of Srinagar. We saw former Chief Minister Omar Abdullah coming in one of the voting centers and voting with his father Farooq Abdullah, and he said that he is very confident of the fact that this time the National Conference is going to win the elections and they are going to form the government after 8th of October. 8th of October is when the counting will take place. Also, let me remind our viewers again that this J&K Assembly elections are taking place after 10 years. The last one had happened in 2014. Now, the reason why I am in this Shikara and on the Dal Lake is because a high-level delegation of very senior diplomats from countries like the US, Mexico, Rwanda, Philippines, Spain, they had been here and they had also gone to several polling booths, but one of the most interesting polling booths that they had visited was that of it's called a place called Khan Mohalla. That's near, you have to go in that polling booth. It's called a floating polling booth. You have to take a shikara to go towards that. It's not accessible by a car. And so we also saw that how the diplomats who are here, they are also going to spend the night on 25th of September, and they are also going to probably see some of the campaigning that is going on, although that has not yet been confirmed. But ABP Live caught up with one of them, and they told us they were not willing to come on camera, but off camera, the fact that they wanted to come and get a feel of Kashmir and understand whether the elections are going on in a free and fair manner. However, this has been questioned by some of the local political parties here, especially Omar Abdullah, who said that, if the foreign journalists are not allowed, then what are the diplomats doing out here? However, we know that the diplomats had been making rounds of Kashmir, although these had been mostly like curated visits after the abrogation of Article 370 and 35A. So to also give you a flavor that, on the 1st of October,
the third phase will be taking place, after which counting will be happening, and we will know which all are the prominent candidates that are going to be forming the government. Let me also tell our viewers that BJP's Ravinder Raina is also one of the strong contenders. So it remains to be seen whether a national conference in alliance with Congress forms the government, or the BJP, or it can be one of the new independent candidates, although their support base is not that strong. However, we know they are giving a tough fight, like the Apni party and also the Awami Ittehad party of Engineer Rashid. For ABP Live, this is Nainima Basu from Srinagar, Kashmir. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.